Hello student. Last lecture we discussed about two concepts. First one is business entity and second one is dual accept concept. Okay. Today uh, I'm going to teach you next another concept. Next concept is going concern concept. Going concern concept means this concept the business will continue for a long period to come and it is not likely to be liquidated in the near future. Okay, means ये जो going concern concept है, it is assumed that the business concern will continue for a fairly long time unless and until it has entered into a state of liquidation. ओके जब तक लिक्विडेशन नहीं होता है तब तक ये जो कंसेप्ट है बिजनेस एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो कंटिन्यू चलती रहती है. ओके it is as a per this assumption it is as per this assumption that the accountant does not take into account the forced sales value of assets will valuing them. Similarly, depreciation on assets is provided on the basis of expected lives of the assets rather than on their market values. Since the concern is to be kept continuously alive for a long period of time, financial and accounting policies are directed towards maintaining such a continuity of activity. For example, a company purchased a plant and machinery of rupees 1 lakh and its life span is 10 years. Okay. According to this concept, every year some amount will be shown as a expenses and the balance amount as an asset. Thus, if an amount is spent on an item which will be used in business for many years, it will not be proper to charge the amount from the revenues of the year in which the items is acquired. Only a part of the value is shown as expenses in the year of purchase and the remaining balance is shown as a asset. The concept to facilitate preparation of financial statement. On the basis of this concept, depreciation is charged on the fixed asset. ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो क्या होता है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स जो भी हमारी एसेट्स है फिक्स्ड एसेट जो होती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. आपने देखा प्रॉफिट प्रायर जब हमने लर्न किया चैप्टर प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन तो उसमें हम डेप्रिसिएशन लिखते थे या फिर कुछ एक्सपेंसेस लिखते थे. तो हमें पता है क्या कैसे लिखना है या ऐसे ही अकाउंटिंग में आ गया डेप्रिसिएशन. व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन वी डोंट नो. हाउ टू कैलकुलेट वी डोंट नो. ओनली डेप्रिसिएशन वर्ड है और वो इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज़ राइट? नो, दिस इज़ नॉट राइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग. क्योंकि अगर कुछ कंसेप्ट नहीं है कुछ लॉजिक नहीं है तो हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अकाउंटिंग में. ओके उसी तरीके से अगर डेप्रिसिएशन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी एसेट्स होती है उसके ऊपर हम थोड़ी टाइम के बाद उसका एक्सपेंसेस निकाल देंगे. मतलब कुछ मेंटेनेंस निकालेंगे या फिर कुछ
एक्सपेंसेस निकालेंगे तो एज लाइक डेप्रिसिएशन होता है, वो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब क्या, अगर हमने कंप्यूटर लिया है, ओके, और कंप्यूटर को 2 इयर्स कंप्लीट हो गए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जाएगा। मतलब क्या, उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। ओके, तो एज पर द रूल हम कंप्यूटर पे 20% और 25% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं एज पर द रूल। और डिपेंड ऑन कंपनीज वो थोड़े फार चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी एक्ट है उसमें जो भी फिक्स्ड एसेट है उसके लिए एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स की है, मतलब परसेंटेज फिक्स किया है। उस हिसाब से ही कंपनीज क्या करती है, डेप्रिसिएशन इम्प्लीमेंट करती है। डेप्रिसिएशन उस टाइप का, मतलब जैसे रूल्स में बताया उसी टाइप से डेप्रिसिएशन उस एसेट पे कैलकुलेट करके वो माइनस कर देते हैं। okay? In the absence of this concept, the cost of fixed asset will be treated as an expenses in the year of its purchase. Okay? A business is judged for its capacity to earn profit in future. It is of great help to investors because this concept is very helpful to investor because it assures them that they will continue to get income on their investments. Okay. Next concept is money measurement concept. उसके जो कंसेप्ट है उसमें ही बताया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो या रेगुलर ट्रांजैक्शन हो, उससे रिलेटेड क्या है, ये कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, only those transactions which can be expressed in monetary terms are recorded in the accounting books. Okay, in accounting everything is recorded in terms of money. Events or transactions which cannot be expressed in the terms of money are not recorded in the books of accounts, even if they are very important or useful for the business. Purchase and sales of goods. Purchase and sales of goods, payment of expenses and receipt of income are monetary transactions which find place in accounting, etc. Death of an executive registry, executive of manager are the events which cannot be expressed in term of money. And this concept guides accountants what to record and what not to record. ये कंसेप्ट क्या करते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, it helps in recording business transactions uniformly, and if all the business transactions are expressed in monetary terms, it will be easy to understand the accounts prepared by the business enterprise. This concept facilitates comparison of business performance of two different periods of the same firm or of the two different firm of for the same period. Okay. For example, at the end of the year 2006, an organization may have a factory on a pieces of land measuring 10 acres, office building containing 50 rooms, 50 personal computers, 50 office chairs and tables, and 100 kg of raw materials, etc.
These are expressed in different units. But for accounting purpose, they are not to be recorded in money terms, that is in rupees. In this case, the cost of factory land may be, say, rupees 12 crore office buildings, of rupees 10 crore computers, and rupees 10 lakh office chairs and tables, rupees 2 lakh raw materials, rupees 30 lakh raw materials for rupees 30 lakhs. Thus, the total asset of the organization are valued at rupees 22 crores and rupees 42 lakhs. Therefore, the transaction which can be expressed in term of money is recorded in the accounts book, that too in terms of money and not in terms of the quantity. मतलब अगर आपको कुछ अकाउंटिंग के बुक में मेंशन करना है या अकाउंटिंग बुक प्रिपेयर करना है, दैट टाइम आपको क्या चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन है वो एज पर रूल आपको मेंटेन करने हैं। मतलब अगर आपने कुछ चेयर्स लिए या कुछ बिल्डिंग ली है तो आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक लिखना है कि बिल्डिंग एट रुपीज़ 12 लाख फॉर बिजनेस पर्पस, 100 चेयर्स फॉर एट रुपीज़ डैश डैश फॉर बिजनेस, या फिर 10 कंप्यूटर्स एट रुपीज़ डैश डैश फॉर फर्स्ट यूनिट। ओके, इस टाइप से अगर आप कुछ लिखोगे या ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको वो बुक्स मेंटेन करने में आसानी होगी। मतलब वहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ऑफिशियली ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही आपने कुछ खरीद मतलब एक्सपेंसेस किए, 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल, पर्सनल कंप्यूटर, 50 ऑफिस चेयर्स, तो एग्जैक्टली अमाउंट आपको समझ में आ रही है इसकी? नहीं आ रही। और यही होता है, अकाउंटिंग बुक जब मेंटेन करते हैं उस टाइम आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप कुछ एक्सपेंसेस करते हो या कुछ परचेस करते हो तो उसके प्राइस आपको तो पता होनी चाहिए, या फिर आपका प्रोडक्शन है और आप सेल कर रहे हो तो उसकी भी प्राइस आपको पता होनी चाहिए। ओके, गॉट इट? व्हाट इज एग्जैक्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? समझ में आ गई है? ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, इस ये नाम में ही आप हमें पता चलता है किससे रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसेट परचेस्ड आर जनरल recorded in the accounting books at the cost at which they are purchased. Okay, means this concept does not recognize the realizable value, the replacement value, or the real worth of an asset, thus as per cost concept. Okay, an asset is ordinarily recorded at the price paid to acquire it, that is at its cost, and this cost is the basis for all subsequent accounting for the assets. Okay, subsequent cost of subsequent accounting for the assets. Thus, the assets recorded at cost at the time of purchase may systematically be reduced by the process of depreciation. These assets ultimately disappear from the balance sheet when they have been fully depreciated. Ultimately disappear from the balance sheet when they have been fully depreciated. The cost concept also implies that if nothing has been paid to acquire an asset, it cannot be shown as an asset in the books of accounts. Okay, cost concept brings objectivity
in the preparation and presentation of financial statements. क्या करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट में, क्या होता है, जो भी कॉस्ट शीट बनाते हैं उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं वो कॉस्ट कंसेप्ट में क्लियर है। मतलब अगर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, कुछ सेल करना है तो उसकी कॉस्ट हम क्या मतलब किस कॉस्ट को हम सेल करेंगे, उससे पहले हमें कितना एक्सपेंसेस हुआ है, उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी कॉस्ट अच्छी है, ये सब कॉस्ट शीट के ऊपर डिपेंड रहता है। It implies that the figures shown in the accounting records should be based on objective evidences and not on the subjective views of a person. Okay. The cost concept is also known as historical cost concept. The effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything for acquiring an asset, this item would not appear in the books of accounts. Thus goodwill appears in the accounts only if the entity has purchased these intangible assets for a price. Okay. This concept requires asset to be shown at the price it has been acquired, which can be verified from the supporting documents. It helps in calculating depreciation on fixed assets. And the effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything for an asset, these items will not be shown in the books of items. For example, for example, a machine was purchased by XYZ Limited for rupees 5 lakh for manufacturing shoes. An amount of rupees 1000 were spent on transporting the machine of the factory site. In addition, rupees 2000 were spent on its installations. The total amount at which the machine will be recorded in the books of accounts would be the sum of all these items, that is rupees 5 lakh 3000. This cost is also known as historical cost. Suppose the market price of the same is now rupees 90,000. It will not be shown at this value. Further, it may be clarified that cost means original or acquisition cost only for new assets, and for the used ones, cost means original cost less depreciation. Okay. एग्जाम्पल समझ में आ गया? क्या है इसमें, मशीन परचेस की थी, 5 लाख अमाउंट थी, क्या थी वो, मैन्युफैक्चरिंग, शू मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन थी। 1000 एक्स्ट्रा क्या थे, ट्रांसपोर्ट के थे, और 2 इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। टोटल अमाउंट क्या थे, 5 लाख। रिकॉर्ड बुक्स में कैसे लिखा फिर, 5 लाख 3000। दिस कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं उसे। और उसके बाद क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ द सेम इज नाउ रुपीज 90,000। इट विल not be shown at this value. Further, it may be clarified that cost means original or acquisition. मतलब जो मशीन जब ली थी उस टाइम की अमाउंट और अभी मार्केट प्राइस, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि 2 साल पहले ली हुई चीज़ और अभी उसकी प्राइस और डिफरेंस होता है, तो इंक्रीज हुई होती हो या फिर प्राइस कम होती है। ओके। मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसके ऊपर ही हमारा क्या है, पूरा अकाउंटिंग डिपेंड है। जब भी हम अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं या फिर कुछ वो फॉर्मेट में हम लिखते हैं, दैट टाइम हमें क्या क्या यूज़ मतलब किसका यूज़ होता है, जो भी हमारे
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके बाद जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग जो रूल है, वो हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मतलब अगर हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द रेवेन्यू प्रॉफिट। मैं ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं मुझे बोल सकते हम कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले मुझे अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। नहीं, ये अपने आप आ जाता है। मतलब अगर आपको छोटी फर्म स्टार्ट करनी है, छोटे सोल ट्रेडर हो आप, आपको कुछ आपका दुकान स्टार्ट करना है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। आपने अगर क्या किया, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप पहले क्या देखोगे? मतलब कुछ तो स्टडी करना पड़ेगा आपको। ऐसे सडनली उठ के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट उसमें से पता होना चाहिए आपको कि कौन से कपड़े को ज़्यादा वैल्यू है, कौन सा नया ट्रेंड है, किस एरिया में शॉप निकाल रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से स्टाइल के कपड़े चलते हैं। ऐसे स्टडी हम करेंगे और उसके बाद ही शॉप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। उसके साथ हमें क्या करना है, हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे आउटपुट क्या मिलेगा, ये भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। या फिर हमारे पास अगर शॉप के लिए 10 लाख कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कितना कैपिटल है, मतलब हमारे पास कितने खुद के पैसे हैं वो देखते हैं। उसके ऊपर हमें बैंक से कितना लोन मिलेगा, या फिर पर्सनल फ्रेंड हो या घर वाले हो उनसे कुछ अमाउंट मिलती है कहीं, ये देखते हैं। ये सब हमें कोई सिखाता है क्या? नहीं, सिखाता नहीं है, लेकिन ये हम देख देख के क्या करते हैं, सीख लेते हैं। हाँ, अगर किसी का बिजनेस मतलब पूरे घर वाले बिजनेस में ही है, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को बचपन से ही आदत होती है वो देखने की। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसे पर्सन है कि जो खुद स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 4 लोगों का बिजनेस देखते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं क्या करना है। मतलब कोई भी चीज़ करनी है, अगर विदाउट नॉलेज आप स्टार्ट करोगे या विदाउट रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, मतलब विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टार्ट करोगे, विदाउट नॉलेज करोगे स्टार्ट, तो आई थिंक इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ प्रॉपर वे से उसकी नॉलेज ली है, आप रूल्स रेगुलेशन बनाए खुद ने ही और वो फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, उसमें सक्सेस मिलती है। सेम स्टडी का भी वैसे ही है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए खुद के, तो ऑब्वियसली आपको क्या होता है, मार्क्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन आगे जाके आप जॉब करोगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बिजनेस करोगे उसमें उसका आपको फ़ायदा होगा, है ना? अब देखो हमारे पास मतलब बहुत सारे फार्मर्स हैं, ओके। अब क्या हो गया है, पहले जैसे खेती करते थे उसमें और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है ना? अगर किसी के घर में खेती है, तो वो बच्चा अगर कुछ अच्छे से डिग्री लेता है उससे रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर की, तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसके जो पापा हो दादा हो वो जैसे खेती करते हैं उसमें थोड़े से एडवांस टेक्निक यूज़ करेगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब क्या है, अगर हमने किसी चीज़ का नॉलेज लिया अच्छे से, तो हमें क्या होता है, उससे अच्छे सक्सेस मिलती है, आउटपुट अच्छा होता है। वैसे ही हम जब अकाउंटिंग करते हैं, ऑफिस का हो या फर्म हो, ऑफिस हो, बड़ी बड़ी कंपनी का हो या सोल ट्रेडर का हो, जहाँ पे भी अकाउंटिंग करते हैं वो अगर कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है, ओके। मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं बता रही थी कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल प्रॉफिट मीन्स क्या, कैपिटल इनकम मीन्स क्या,
तो कैपिटल इनकम मीन्स एन इनकम विच डज नॉट ग्रो आउट ऑफ और grow out of to the operating of the business firm proper. Okay. And what is the capital expenditure? An expenditure which has been incurred for the purpose of obtaining a long term benefit for the firm. Okay. And revenue income means an income which arises out of and in the course of regular business. Okay. एंड देन उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे बनाने, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो कैसे बनानी, ये सब जो है वो कंसेप्ट के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है. ओके. तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारी कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना है, जो भी आप ये वीडियो लिसन कर रहे हो वो केयरफुली लिसन करो. और मैंने आपको बताया था जैसे निराली का बुक आप यूज़ करते हो, निराली का बुक आपको यूज़ करने के लिए बोला था मैंने, वो निराली का बुक यूज़ करो. और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बता देना, तो मैं फिर से क्या करूँगी, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. अभी तक हमने कितने देखे हैं कंसेप्ट्स. फर्स्ट बिजनेस एंटाइटी, then dual accept, third one is going concern concept, and fourth one is money measurement concept, and fifth one is cost concept. Okay. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, उसके बाद एक्रूअल कंसेप्ट है, एंड उसके बाद पीरियडिक ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट है, एंड नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट, एंड जो लास्ट वन इज है वेरी वर्टिफाइलेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट. ओके. टोटल आपको 11 कंसेप्ट्स है जो स्टडी के लिए आपको मतलब ये किया है, क्या सिलेबस स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 11 कंसेप्ट्स आपको दिए हैं. ओके. उसके बाद कन्वेंशंस जो है, कन्वेंशंस टोटल आपको है 6 कन्वेंशंस है. उसमें कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी है, सॉरी, उसके बाद फुल डिस्क्लोजर है, एंड और मार्केटिंग रिलेटेड एक है. ओके. इतने सारे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है जो आपको लर्न करने हैं. उसके बाद जो न्यू ट्रेड है वो ट्रेंड तो सिंपल है. okay? तो नेक्स्ट लेक्चर को जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, और अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब. थैंक यू.